Students, good morning. And today, since I'm closing the chapter, I'm going through questions from each and every exercise. This is exercise 4.1, 4.2, 4.3. I'll be marking the questions which I feel are important from this chapter. What I suggest is I'll be discussing those also, how to do them. But while you are practicing for the assignment, make it sure that you solve each and every question. Every question should be conceptually clear to you, that how to go about it. Okay, so first of all, I'm coming to the exercise 4.1. that is the old textbook which I have, and this is the first question, in which the first question, first two parts is quite simple. It is u and v equation given to you. This is a u equation, this is a v equation. The requirement is find the joint equation. You just need to do the product of these two equations, u and v, and make it equal to 0. Means you need to equate the equations. The product of u and v needs to be equated equal to 0. That is what I say is, suppose you have x plus y into 3x minus 5y equal to 0. सिर्फ इन दोनों प्रोडक्ट्स, इन दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट लीजिए, इक्वल टू 0 करिए, you will get the answer of it. Okay, is this clear to all of you? This is the first question. There are 5 subparts to it, in which the there is the fifth subpart. Means this part, this question is important. This is a good 3 marks question which could come in your board exams. So I would like to discuss this question with you. The question says that there needs to find a joint equation, and one of the line is parallel to this line. This is the line to which it is parallel, and the other line passing through the origin is parallel to this line. So it is not passing through the origin, it is passing through -1, 2. So what I suggest is, first convert this equation into slope intercept form. Convert this equation into slope intercept form. You know how slope intercept form looks like. Y is equals to mx plus c. Convert this equation into slope intercept form. Convert this equation into slope. मतलब ये दोनों equations को slope intercept form में convert करिए. Y is equals to mx plus c format में. वहाँ से m की value calculate करिए. For this equation, calculate value of m. For this equation, calculate value of m. अभी आपसे बोला गया है कि जो होमोजीनियस जो इक्वेशन है, नॉट होमोजीनियस, द इक्वेशन जो है वो ये वाली लाइन के पैरेलल है. इफ इट इज पैरेलल टू दिस लाइन, उसका स्लोप इसके स्लोप के बराबर रहेगा. और आपसे बोला गया है कि ये वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर रहेगा. तो यहाँ से दो स्लोप्स की वैल्यू निकाल लीजिए. एक तो इसी के स्लोप के बराबर रहेगी, और एक इसमें से m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 के बराबर आएगी. दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करिए. और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, क्लास 11th का कंसेप्ट, हाउ टू फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल्स टू स्लोप पॉइंट फॉर्म जिसको कहते हैं अपन, वो वाला फॉर्म लगाकर दोनों लाइंस की इक्वेशन बनाइए और दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए. अगर मैं आपको करके बताऊं तो देखिए इसको कैसे आपको कॉपी में करना था. So this is the question. Passing through -1, 2 and is parallel to x plus 3y minus 1. Another is parallel perpendicular to 2x minus 3y minus 1. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि what you do, जो ये पहली इक्वेशन है, यानी कि आपकी जो ये इक्वेशन है x plus 3y minus 1, इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो. कैसे करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में? मतलब आप इसको लिखो 3y is equals to
माइनस एक्स प्लस वन, वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन थ्री। मतलब अब ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ से m की वैल्यू अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो तो m की वैल्यू यू गेट इट एज माइनस वन बाई थ्री। एम आउट हेयर इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई थ्री। और आपसे बोला गया है दूसरी लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस थ्री वाई माइनस वन। 2x माइनस थ्री वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तो इट विल बी इक्वल टू थ्री वाई इज इक्वल्स टू 2x माइनस वन, वाई इज इक्वल्स टू 2x अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन थ्री। दैट मीन्स m की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब आपको मालूम है कि एक लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप का वैल्यू रहेगा -3/2। और आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ये लाइंस -1, 2 से पास हो रही है, ये बात आपको गिवन है। तो आपको लाइन की इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला मालूम है। द लाइन की इक्वेशन बनती है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, है ना। ये लाइन की इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला टू मेक इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको वन पॉइंट फॉर्म या स्लोप पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं। अब ये y1 x1 की जगह ये जो y1 और ये x1 है इसकी जगह आप ये वाली वैल्यूज़ डाल दो -1, 2। मतलब x1 की जगह -1 सब्सटीट्यूट करो, y1 की जगह 2 सब्सटीट्यूट करो, है ना। और m की जगह एक बार आप वैल्यू डाल दो -1/3 और एक इक्वेशन बनाओ, और यही m की जगह आप दूसरी बार वैल्यू डाल दो -3/2 और दूसरी इक्वेशन बनाओ। यू विल गेट दी टू इक्वेशंस। उन दोनों इक्वेशंस को, एक को u बोलो एक को v बोलो, दोनों का प्रोडक्ट लो, इक्वल टू 0 करो, यू विल गेट दी आंसर। ओके, सो दिस इज एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट। सिमिलरली 4.1 का सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत आसान है। फाइंड दी सेपरेट इक्वेशंस। सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए आपको सिर्फ इन क्वेश्चंस को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना है। ये नहीं होंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, ये पहला वाला स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं होगा, है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y कॉमन निकालना पड़ेगा। मतलब ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी, y आपने कॉमन निकाला, ये दो टर्म्स वाले कभी भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं होंगे, ये वाले ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं होंगे, इसमें आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। तो y कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 3y प्लस 7x। मतलब अगर आपने y कॉमन निकाला तो अंदर बचा 3y प्लस 7x इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन आ जाएगी 3y प्लस 7x इज इक्वल टू 0। तो ये सेपरेट इक्वेशंस आ जाएंगी यहाँ पे। दो वाले जितने भी हैं, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन तीनों में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगेगा। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप लगा सकते हो। 3x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 8y स्क्वायर, ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो आ जाए -24, और जिनको आप ऐड करो तो आ जाए -10। तो -12 प्लस 2 ये दो नंबर्स हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाता है -24, और आप इनको ऐड करते हो तो आ जाता है -10। तो आप इस क्वेश्चन को वैसे ही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करके इसकी दो इक्वेशंस बना सकते हो। अब इसके जो सिक्स्थ और सेवेंथ पार्ट है वो थोड़ा टिपिकल है। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके 5 क्वेश्चंस जो ऊपर के हैं ये तो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। देयर आर मोर और लेस 2 मार्क्स क्वेश्चंस। लेकिन इसी क्वेश्चन का जो सिक्स्थ और सेवेंथ पार्ट है, इन दोनों में से कोई भी एक, वो 3 मार्क का क्वेश्चन है। ये मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि ये क्वेश्चन को कैसे करना है। मैंने आपको बताया था पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड करो, फिर x अपॉन y को y अपॉन x को कुछ मान लो m a b, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर उसके रूट्स निकालो। क्वाड्रेटिक के रूट्स -b प्लस माइनस, वो जो फॉर्मूला मेथड रहता है उससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आऊँ। थर्ड क्वेश्चन वैसा ही है। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय।
तो आपको ये बताया गया है कि जॉइंट इक्वेशन निकालनी है लाइंस की, और वो ये होमोजीनियस लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो पहले इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करो, इनका स्लोप निकालो और इनके स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करो, है ना। आप इसमें एक क्वेश्चन और तरीके से इसको कर सकते थे कि आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकालते और m1 प्लस m2 और m1 m2 की वैल्यू कैलकुलेट करते। मैंने आपको कल बताया था कि m1 प्लस m2 काय के बराबर है और m1 m2 काय के बराबर है। m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू माइनस 2h अपॉन b और m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। ये कल हमारा डिस्कशन हुआ था। तो आप क्या कर सकते थे वहाँ से, ऐसा भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को कि अलग अलग दो इक्वेशंस बना लेते, वहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करते। आपको मालूम है कि ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उसका स्लोप m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 करके उनका स्लोप्स निकाल लेते और बस सादा इक्वेशन में डाल के दोनों को प्रोडक्ट करके आपको फाइनल इक्वेशन मालूम चल जाती। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आने के चांसेस अच्छे रहते हैं। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज फ्रॉम दिस चैप्टर, इसलिए ये चैप्टर का ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं नेक्स्ट पार्ट पे आऊँ इसके। ओके, कमिंग टू द क्वेश्चंस 4, 5, 6 एंड 7। फाइंड के, ये के वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ अ 3 मार्क क्वेश्चन, ये पेपर में ज़्यादा आते हैं, है ना। क्वेश्चन आसान है। मैंने आपको इनिशियली व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग द चैप्टर ये एक्सरसाइज मैंने बताया था, तो मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताए थे कि ये के की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इफ़ एट ऑल किसी को डाउट रहे कि सर मुझे ये क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं या ये नहीं समझ में आ रहे हैं, आई रिमाइंड यू वंस अगेन, गेट इन टच पर्सनली विद मी, आई कैन सॉल्व योर डाउट्स, है ना। अभी तो मैं सिर्फ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि आप हर एक टाइप के क्वेश्चन को कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं, एंड आई एम गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। ये कंडीशन वाला क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, फाइंड द कंडीशन दैट। कंडीशन वाले में मैंने आपको बताया था ऑक्सिलरी इक्वेशन काम में आती है। जब भी कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आता है वहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन काम में आती है। सो दिस क्वेश्चन इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। 7th, 11th और 11th क्वेश्चन, दीज आर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। 7th वाला भी क्वेश्चन तो अच्छा है, फाइंड द जॉइंट ऑफ इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस थ्रू द मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द लाइन y इज इक्वल्स टू 3। मतलब आपको एक जॉइंट इक्वेशन निकालना है पेयर ऑफ लाइंस का जो कि ओरिजिन से पास हो रही हैं, और वो इसके साथ में अपने मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द लाइन y इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 3 के साथ में वो अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रही हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7th। इसका एक डायग्राम मैं आपको निकाल के देता हूँ एज अ हिंट कि ये कैसा दिख रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यू प्लीज सी टू इट, हाउ डज दिस लुक्स लाइक, है ना। ये प्लीज सी टू इट, ये उस क्वेश्चन का डायग्राम है जो कि वो क्वेश्चन 7th में दिया गया है। आपसे बोला गया है कि जॉइंट इक्वेशन निकालनी है पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की जॉइंट इक्वेशन निकालनी है। दिख रहा है ना, ये ओरिजिन से पास हो रही है, थ्रू ओरिजिन, है ना। और आपको बोला गया है कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये y इक्वल टू 3 के साथ एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रही है। ये रही लाइन y इक्वल टू 3, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रही है, मतलब हर एक एंगल 60 का रहना चाहिए। मतलब ये एंगल 60 का है, ये वाला एंगल 60 का है और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का है, ठीक है। अगर ये एंगल 60 का है तो ये छोटा एंगल यानी यहाँ से यहाँ तक ये 30 का होगा और ये यहाँ से यहाँ तक 30 का होगा, ठीक है। और आपको मालूम है कि ये एंगल पूरा 90 का रहता है, यहाँ से ऐसा, दिस एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री, जिसमें ये 30 है तो ये बचा हुआ एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का। मतलब ये वाली लाइन जिस पे मैंने टिक मार्क मारा है,
इसका स्लोप हो गया tan 60 डिग्री। ये लाइन का स्लोप हो गया जिस पे मैंने टिक मार्क किए डार्क साइन बनाया है, इसका स्लोप हो गया 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस लाइन का एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल है 60 डिग्री का, तो इस वाली लाइन का स्लोप हो गया tan 60। ये वाली लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब आपको इसके कोऑर्डिनेट्स भी मालूम है 0,0। अब आप इसमें आराम से स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाओ और लाइन की इक्वेशन बनाओ फर्स्ट लाइन के लिए, ये फर्स्ट लाइन के लिए। अब सेकेंड लाइन के लिए क्या करेंगे, ये है सेकेंड लाइन मेरी। सेकेंड लाइन के लिए देखिए एक्स एक्सिस के साथ में कितने का एंगल बना रही है, यहाँ से यहाँ तक तो 90 है और ये 30 एक्स्ट्रा, मतलब ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल 120 डिग्री का दिख रहा है मुझे। मतलब ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप रहेगा tan 120 डिग्री, ऊपर वाली लाइन का स्लोप रहेगा tan 60 डिग्री और ये नीचे वाली लाइन का स्लोप रहेगा tan 120 डिग्री। मैं अब इन दोनों के स्लोप्स निकालूंगा और इसमें फॉर्मूला इक्वेट करूंगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1, और इसको कैलकुलेट कर लूँगा। मेरे पास ये फॉर्मूला मुझे यूज़ करना पड़ेगा इक्वेशन बनाने के लिए, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। तो यहाँ दिस इज़ द फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। तो y1 और x1 की जगह तो आप 0 0 डाल देना, m की जगह जो tan 60 की वैल्यू आ रही है वो डाल देना, और एक बार tan 120 डिग्री की वैल्यू डालना, और आपके पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी, उनका प्रोडक्ट लेना, यू विल गेट द आंसर इक्वल टू 0 रखना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई वाइंडेड the questions from the exercise for now on. You solve the questions. If you have doubt, just bring the doubt to me. Today I won't be giving you the assignment of any sort. No assignment today. You need to do the questions from the exercise. सारे questions करके देखिए exercise से, be it today, tomorrow, day after tomorrow, 3-4 दिन लीजिए अगर लग रहे हैं तो, है ना, और इसको सॉल्व करिए। हाँ, मैं आज आपको एक गूगल टेस्ट ज़रूर फॉरवर्ड करूँगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर अटेंडेंस पर्सपेक्टिव, तो वो गूगल टेस्ट को ज़रूर सॉल्व करिएगा एंड लेट मी नो अभी कि आपको अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो। अदरवाइज द क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट ईजी, अगर आपने करा हो, समझा हो तो आपको आसान लगेगा, नहीं तो थोड़े से टफ लगेंगे। और अगर जिसको नहीं समझ में आया है, गेट इन टच, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, गेट इन टच विद मी, मैं फिर से आपको बताऊंगा कैसे करना है। ओके, थैंक यू।